أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی نسل سے بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نام کیوں دیا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر خدا نے کون سی ایسی بڑی آزمائش نازل کی جس کی وجہ سے اب رو کر نابینا ہو گئے؟ آخر کار یہ آزمائش کس وجہ سے نازل ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کون سا معجزہ تھا؟ اس کے علاوہ بھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 16 بار ذکر ہوا ہے، زبور میں 12 بار ذکر ہوا ہے، انجیل میں 2 بار اور تورات میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ نبی خدا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کا شمار بھی بڑے انبیاء میں ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی تھا جو ہر صبح اپنے گھر کے پہلو سے دور دور تک اعلان کرتا تھا جس کو کھانا چاہیے وہ یعقوب کے گھر آئے، اور شام کو بھی اعلان کیا کرتا تھا کہ جس کو کھانا چاہیے وہ یعقوب کے گھر آئے۔ اکثر انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسو کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پدر بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں یہ دعا دی تھی کہ خدایا اس کی نسل سے نبوت قائم کرے، اور اسی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حسد کرتا تھا۔ بعض روایات کی بنا پر حضرت اسحاق نے عیسو کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ خدا اس کی نسل میں دولت و ثروت، بادشاہی و سلطنت قائم کرے، لیکن پھر بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسد کی نظر سے دیکھتے رہے، جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماں کے مشورے سے اسی رات جس رات حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا تھا اپنے وطن کنعان سے فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ روایت طبری میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے فلسطین چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی لبان سکونت پذیر ہے اور وہاں اس کی حیثیت بھی بہت ہی نمایاں ہے، تم وہاں ہر طرح سے محفوظ رہو گے اور نہایت آرام سے دن گزارو گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے ہجرت کر کے فلسطین کو چلے گئے، اور چونکہ رات کے وقت سفر اختیار کیا تھا اور راتوں رات چلتے رہے تھے، اسی لیے ان کا لقب اسرائیل قرار پایا۔ بعض نے کہا ہے کہ لفظ اسرائیل عربی ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے۔ جو لوگ اس لفظ کو عبرانی کہتے ہیں کہ اسرا عبرانی میں سردار اور ایل خدا کو کہتے ہیں، جس کے معنی خدا کا بنایا ہوا سردار کے ہوئے۔ روایت کی شرح میں ہے کہ اسرا عبد اور ایل خدا کو کہتے ہیں، لہذا اس کے معنی عبداللہ کے ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسرا کے معنی رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ رات کو سفر کیا تھا اس لیے آپ کا نام رات کا سفر دوست پڑ گیا۔ مبارک حروی کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے روانہ ہو کر فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں بہت تھک جانے کی وجہ سے ایک جگہ خدا پر تقویٰ کیے ہوئے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت آپ کو خواب آیا اور اپنے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کا کھمبا نصب ہے اور بے شمار فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران میں ایک آواز آئی کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی قابل پرستش ہوں، میں نے تمہیں درجے نبوت پر فائز کیا ہے، میں نے ہی زمین کی ملکیت تمہارے لیے اور تمہارے بعد تمہاری نسل کے لیے قرار دی ہے، میں نے تمہیں صاحب کرامت و معجزہ قرار دیا ہے، میں تمہارا محافظ ہوں، ان قریب تمہیں نہایت فراخی کی حالت میں وطن واپس لاؤں گا، اور تم بیت المقدس کی تعمیر کی طرف متوجہ رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے
तो समझ गए कि पिदर बुजुर्गवार हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम की दुआ काम कर रही है और मेरा मुस्तकबिल इंशाअल्लाह निहायत शानदार होगा। इसके बाद वो वहां से रवाना होकर फलस्तीन पहुंच गए और फिर वहां से रवाना होते हुए एक मकाम हारून पहुंचे, जहां एक कुनवा था और कुनवे के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लड़के और लड़कियां पानी लेने के लिए जमा हुए और आप उनके करीब पहुंच गए और उनसे पूछा क्या बात है। कहा गया कि इस कुनवे के मुंह पर यह पत्थर रखा हुआ है और उठ नहीं रहा और हमें खुद भी सहराब होना है और इन जानवरों को भी सहराब करना है। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने पूछा कि हमें सबसे पहले ये बताओ कि लाबान बिन बतूल इसी इलाके में रहता है या कहीं और रहता है। लोगों ने कहा कि वो यहीं रहते हैं और अभी अभी उनकी लड़की राहील अपने बाप का सामान लिए हुए आती होगी। अभी ये बात खत्म न हुई थी कि राहील आ पहुंची। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने जो ही राहील यानी अपनी सगी मामूजात बहन को देखा, बढ़कर उसकी पेशानी का बोसा लिया और कुनवे के मुंह से पत्थर हटाकर कहा कि तुम सब जानवरों को सैराब करो। जब वो पानी पिला चुके तो हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने राहील से फरमाया कि जाओ अपने बाप से कहो कि तुम्हारी बहन रुफका बिन्त बतूल का लड़का आया हुआ है। राहील निहायत खुशी के आलम में जाकर अपने बाप से सूरत हाल बयान की। लाबान निहायत खुशी की हालत में दौड़े हुए हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के खैर मुकद्दम के लिए आए और उन्हें अपने हमरा अपने घर ले गए। क़सस अल-जवेरी में है कि हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम एक ख्वाब देखकर अपने घर से चले थे और लाबान ने भी एक ख्वाब देखा था कि ख्वाब ये था कि कुनवे पर से बड़े पत्थर को एक शख्स हटाएगा, इसका नाम यकूब होगा और अपनी लड़की राहील की शादी इसी से करना। किताब रोज़ अल-सफ़ा में है कि जिस जमाने में हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम अपने मामू के पास पहुंचे थे वो जमाना कहत साली का था। उनके मामू लाबान के पास एक कुनवा था। इसी कुनवे से उनके मवेशी सैराब हुआ करते थे। कहते हैं कि कैद का जोर बढ़ते ही कुनवे का पानी खुश्क होने लगा और यहाँ तक इस पर असर पड़ा कि पानी की कमी महसूस होने लगी और यह ख्याल आने लगा कि पानी खुश्क हो जाएगा। उस वाक़ये से लाबान सख्त मुतासिर और परेशान था। एक दिन हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम से अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि अगर इस कुनवे का पानी खुश्क हो गया तो न सिर्फ ये कि मेरे मवेशी हलाक हो जाएंगे बल्कि अपनी भी खैर ना होगी। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने फरमाया अब घबराएं नहीं, खुदा बड़ा कारसाज है। इसके बाद आप अपने मकाम से उठे और कुनवे की जगह पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर अपने कुनवे से एक डोल भरा और इसमें से थोड़ा पानी पिया और बाकी बचा हुआ पानी कुनवे में डाल दिया। कहते हैं कि खुदा की कुदरत से कुनवे का पानी फौरन बढ़ गया। ये हाल देखकर लाबान बिन बतूल हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम पर गिरवीदा हो गए। मौरखीन का बयान है कि हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के मामू जो जमीन कनान से तर्क बदर करके फलस्तीन पहले गए थे और जिनका नाम लाबान बिन बतूल था, इसकी दो लड़कियां थी, एक का नाम लिया और दूसरी का नाम राहील था। एक दिन हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने अपने मामू से कहा कि मेरे वालिद हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम ने मुझे हिदायत की थी कि मैं आपकी लड़की से शादी करूं, इसलिए मैं इस मकसद के लिए दरख्वास्त गुजार हूं। लाबान बिन बतविल ने कहा कि इस मकसद के लिए कम अज कम 7 साल तुम्हें बतौर मेहर घर की खिदमत करना होगी। उन्होंने मंजूर कर लिया और 7 साल उनकी बकरियां पालते रहे। इस खिदमत के बदले में लाबान बिन बतूल ने अपनी एक लड़की की शादी हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के साथ कर दी। फिर जब बारवायत अल्लामा नेमत अल्लाह जुज़री इसका इंतकाल हो गया तो लाबान बिन बतूल ने दोबारा 7 साल की खिदमत के बदले में दूसरी लड़की की भी शादी कर दी और दोनों को एक एक कनीज भी दी। राहील की खिदमत के लिए जिसका नाम बिल्हा और लाक की खादमा जिसका नाम जुल्फा था। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम ने अपनी बीवियों की मर्जी से इन कनीजों को भी बाउसूल शरीयत इस्तेमाल फरमाया। खुदावंद आलम ने उन चारों औरतों से हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम को 12 फर्जंद अता फरमाए। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के 12 बेटों को कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस बात से याद किया है। इस बात सब्त की जमा है और सब्त इस दरख्त को कहते हैं जिसकी शाखें बेशुमार हों, जो कि उनकी औलादें और नस्लें बेइंतहा बड़ी थी, इसलिए इनको इस बात कहा गया। मौरखीन का मुत्तफ़िका बयान है कि हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम की वालिदा जनाब राहील का इंतकाल बिन्यामीन की विलादत के मौके पर हो गया था।
उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल की थी। राहील की वफात के बाद यूसुफ की परवरिश की जिम्मेदारी उनकी खाला पर आयद हो गई थी, जिनसे वो खिदमत करती रही और इस दर्जे खिदमत की कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी माँ जानते मानते और कहते रहे। यकूब अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन के दौरान कसीर औलाद हो गए और बेशुमार दौलत और दीगर मवेशियों के मालिक बन गए, तो उन्हें वतन की याद में सताना शुरू किया। बिलाखिर लाबान बिन बतूल की इजाज़त से अब कनान की तरफ रवाना हुए। अब जब कनान पहुंच गए तो कनान में अपने एक ही साल गुजारा था कि खुदावंद मुताल ने मबूस बेरिसालत कर दिया और अब तबलीग खुदा में मसरूफ थे। एक दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपको ख्वाब सुनाया, जिसकी वजह से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि यूसुफ रिसालत के ओहदे पर फाइज होगा, जिसकी वजह से अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ही ज्यादा ख्याल करते थे और उनसे प्यार करते थे। लेकिन आपके बाकी बेटे ये सब कुछ देखकर हसद करने लगे और शैतान के वसवसों में आकर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में गिरा दिया। मुख्तसर ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले वालों ने कुनवे से निकाला और मिस्र ले गए। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि वो नाबीना हो गए, कुरान मजीद की सूरा यूसुफ आयत नंबर 85 में इरशाद होता है, फर्जंदान बनी इसराइल ने कहा, बाखुदा तो इतना यूसुफ यूसुफ करता है कि बीमार हो जाएगा और मौत के किनारे पहुंच जाएगा, हलाक हो जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज जो खून उल्लूदे था, इस कमीज को हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास ले गए। कुरान मजीद की सूरत यूसुफ आयत नंबर 94 में इरशाद होता है, अगर तुम बदगोई न करो और मेरी तरफ नादानी और झूठ की निस्बत न दो तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे अपने प्यारे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कहते हैं जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अपनी आंखों पर लगाया तो कमीज के लगने की बरकत से आपकी आंखें दोबारा वापस आ गई और फिर अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया।